Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the BHL Entrance Exam by our coach Bakul Hansika. So as in the previous class, as you all know that we were doing the overview of CLAT 2023 and 2024 paper. We were almost done, a few parts were still left. So the video was too long, so I decided that we're gonna make it another video, right? So that we can continue with the same topic. So we'll start with it. On the I button, you can see the फर्स्ट वीडियो. ठीक है, वहां से जाकर आप देख सकते हो इफ यू वांट टू सी. अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग विद द फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेज ओनली वेयर वी हैड लेफ्ट. ठीक है, हम आ गए थे क्रिटिकल रीजनिंग पर. मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप पहले पैसेज को रीड करते हो देन क्वेश्चंस को रीड करते हो. तो चलो पहले पैसेज देखते हैं. वर्ड्स रिमेन एन एनाग्मा. एनाग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री. देयर प्रेजेंस विद इन ह्यूमन स्फेयर इज यूनिक मिस्ट्री. दे फॉर्म एन इंट्रिकेट टेपेस्ट्री दैट कन्विंसेस अस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. इंट्रिकेट मतलब कोई चीज बहुत embedded होती है, that is intricate. Blurring lines between the fact and fiction. Fact is something which is true, fiction is something which is not true, right? So it basically, I would say, coincides it. An engagement with words is most captivating, most memorable, enchanting, and sometimes daunting encounter with the world. A word, a symbolic entity formed from the ethereal. Ethereal is something which is very transparent, which is very lightweight. Exists neither as an animate, मतलब living, nor as an inanimate, मतलब non-living. Yet pulsates with life. Yet it goes with life. It can emanate warmth and coldness, absorb emotions, or stand as dry as a rock. Words can provoke smiles and elicit joys. They're like glowworms, momentarily dispelling the surrounding darkness, and act as life-saving rafts amid a tumultuous ocean waves. तो tumultuous का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग, बहुत खतरनाक होती है. डिस्पेलिंग इज समथिंग. अगर हम इन्फर भी करना स्टार्ट करें, इन्फर करना स्टार्ट करो यार, अगर तुम्हें मीनिंग भी नहीं पता. डिस्पेलिंग मत सराउंडिंग डार्कनेस का मतलब होता है उस डार्कनेस को खत्म करना. जैसे लाइफ सेविंग राफ्ट्स. राफ्टिंग होती है व्हेन यू मूव थ्रू द रिवर्स flowing waters. That is when you are navigating through the flowing, I would say, ups and downs in life. The words, they grant us the ability to explore the universe and to see the world in a grain of sand, as William Blake noted. They impart a semantic. Semantic is related to language, existence to the lifeless, bestow aesthetic form upon the formless. Beautiful. Scriptures say the word is the world, and I say the world within the word is the board of faith. Press faith in it. Of course, जो हमने बताया कि यार इतना ब्यूटीफुल होता है, एस्थेटिक होता है ना, बोल सकते हैं वर्ड एंड वर्ल्ड. कोर्स वर्ल्ड ही वर्ड पर चलती है, ठीक है. अब बोलोगे नहीं तो कैसे, हाउ विल पीपल कम टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट. ठीक है. सो अगर हम बात करें नेक्स्ट में, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. सेंट्रल थीम क्या है, आंसर कैसे निकालते हैं. अगेन सेम रूल है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलेंगे. मैं सारी चीजें देख रही हूँ आपकी. I have also few pointers written for you guys, so I'm just going through them. If I have missed up any, I don't think so I've missed any of the points. Fine. हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. हिस्ट्री के बारे में हमने कोई बात करी नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड. वर्ड और लैंग्वेज में बहुत फर्क होता है. और मेरे पास ये लेकर मत आना कि देखो वर्ड भी तो लैंग्वेज का पार्ट है ना. नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर सीआर. मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन. कॉग्निशन ब्रेन होता है. माना कॉग्निशन वर्ड मेंशन्ड है पैसेज में, बट इसका मतलब ये नहीं आप कॉग्निशन लिख दो. ठीक है. Cognition is related to brain. Importance of storytelling. I understand that story consists of the word, right? It consists of words, but you have to be very specific. Impact of words on human existence, it makes more sense. आपने captivating, enchanting, daunting, ये सब कुछ बता दिया. It actually shows that it plays a very critical role and it does have an impact. According to the passage, what does word symbolize? An inanimate object. I'll highlight for you. Animate or inanimate yet pulsates with life. ठीक है. तो यार इनएनिमेट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, टैंजिबल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि हमने लाइफलेस ऑब्जेक्ट बोल दिया. आपने उसको एथेरियल अगर बोल दिया है तो उसका मतलब बहुत लाइट वेट ट्रांसपेरेंट सा होता है. ठीक है. एब्जॉर्ब करता है इमोशंस. तो ऑफकोर्स ये आपका टैंजिबल तो है नहीं. टैंजिबल मतलब जो टच कर सकते हो. और अगर आप तुम लॉजिक भी लगाओगे तो देखोगे कि यार वर्ड को हम टच नहीं कर सकते, थोड़ा सा लॉजिक भी. ठीक है. एन इनएनिमेट एंटिटी. लॉजिक भी बहुत कम टाइम पर लगाना. ठीक है. बहुत कम इंस्टेंस पे लॉजिक होगा. इनएनिमेट एंटिटी एलिमिनेट हो गया. एन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट, ये इट मेक्स सेंस. अच्छा, अब इसमें क्या होगा, हो सकता है कि यार एक्सप्लिसिटली ये टैंजिबल ना लिखा हो, बट अगर इनएनिमेट और एनिमेट को एलिमिनेट कर सकते हो जो एक्सप्लिसिटली दिख रहा है, उसके बाद तुम्हारे पास बचा कि यार एक इंटेंजिबल चीज है और एक टैंजिबल है.
टैंजिबल मतलब जो टच कर सकते, इंटेंजिबल जो टच नहीं कर सकते। बिकॉज वर्ड एक इंटेंजिबल सी चीज है, ठीक है, ये सब इंटेंजिबल ही है। अ बोर्ड ऑफ फेथ, dispelling surrounding darkness, life-saving rafts amid the tumultuous waves, captivating, enchanting. All these are actually, they're what? They're intangible only, right? How does the passage describe the word's ability to affect emotions? Words can only evoke positive emotions. नहीं भाई, हमने daunting भी बोल दिया तो negative भी होगा. Words have no impact. Very extreme option eliminated. Words can be devoid of emotions. Eliminated. Very extreme options. Words can absorb emotions and become emotional themselves. Absolutely, it makes sense. It's mentioned over here as well. Absorb emotions. Stand as dry as a rock. ठीक है, fine. It's mentioned. Engagement with words is most captivating, enchanting, and sometimes daunting. What are the conclusions that can be drawn? Words can be used to manipulate others. हमने लिखा है कि आप किसी को manipulate करो literally. No, we're talking about positive and negative aspects. Power of the words should be used carefully. ये तो भाई, you're drawing out something. It is not bare away. हाँ, माना कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, मतलब वो ड्रॉ करना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, बट कंक्लूजन आप फाइनली क्या कंक्लूड कर रहे हो उस लाइन से, व्हाट आर एबल टू मेक आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन. वी आर नॉट saying that should be used carefully. Words can capture atrocities of the world. मतलब it's a very, of course, extreme option. Atrocities का मतलब ही बहुत अजीब होता है. Can paint a picture of world in all different colors that makes sense. When you think it's captivating, it is something which captures your memory or it's kept in your memory. It is enchanting. And sometimes it's a little bit daunting. It makes sense that, yeah, it can paint a picture of world, it can show the world in different facets, like in different colors. Which of the following strengthen? एक क्वेश्चन आ गया, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, स्ट्रेंथन और वीकनिंग का. ये क्लैट में बहुत आता है. यूजुअली क्लैट में स्ट्रेंथन वीकनिंग ना आकर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. अच्छा, आई विल शो यू कि यार कैसे निकालते हैं इन्फ्रेंस इन द अपकमिंग सेशन. बट इन्फ्रेंस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है. Being like glowworms momentarily dispelling the surrounding darkness. They can cast darkness. यार ये जो darkness है, इसको dispel कर, इसको हटा रहे हो. And then आप एक life saving, देखो चीज लिखी हुई है, I'll highlight it for you. Uh, Glowworms dispelling surrounding and act as life saving rafts amid the tumultuous ocean waves. It is already mentioned. तो उस केस में cast darkness in the mind of the reader हो ही नहीं सकता. Help in escaping reality. कौन सी रियलिटी? रियलिटी के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं. इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर, राइट, और दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी. अब थोड़ा सा देखो, ये दो ऑप्शंस था पकड़ने वाले हैं, ठीक है. कुछ चीजें होती हैं, एक पर्टिकुलर मैं आपको चीज बताती हूँ, होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है आपका पास मेटाफोरिकल मीनिंग. प्लीज इग्नोर माई स्पेलिंग्स, आई नो दे आर बैड. ठीक है. One is literal meaning, one is metaphorical meaning. Now, literal meaning means what it means on the face of it. That is literal meaning. Okay. जैसे for example, I say, um, literal meaning में, this is a pen. This is very literal. ठीक है. Or I would say, she was surrounded by clouds. ठीक है. और clouds were over her. ठीक है. और I would say dark clouds were over her. चलो, I'll make a sentence. Dark clouds were over her. चेंज द कलर. अच्छा, इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि मैं किसी एक्सट्रैक्ट से ये चीज उठा रही हूँ, जिसका मतलब हो कि यार, हम एक साथ पार्क में खड़े थे, वो पार्क में खड़ी थी, मैं लेट हो गई, मैं बाद में पहुंची, और मैंने देखा कि यार मौसम खराब है, और वो पार्क में अकेले खड़ी थी तो डार्क क्लाउड्स थे उसके ऊपर से. ये हो गया लिटरल मीनिंग, व्हाट इज ऑन द फेस ऑफ इट. इसका मेटाफोरिकल मतलब होता है इसका डीप मीनिंग, ठीक है, जो मीनिंग आप फील कर सकते हो. दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी बाय योर आईज. दिस इज समथिंग दैट यू कैन ओनली फील. फीलिंग इज मेटाफोरिकल सेंस. डार्क क्लाउड्स वर ओवर हर. डार्क क्लाउड्स मतलब रेफर कर जाएगा एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, एनी काइंड ऑफ एग्जाइटी दैट शी वाज फेसिंग. दैट वुड बी मीनिंग ऑफ डार्क क्लाउड्स इन दिस सेंस, इन मेटाफोरिकल सेंस. अच्छा, अब अगर थोड़ा सा बात करें
Words help in understanding the reality, or words illuminate the mind of the reader, right? They're putting light in the minds of the reader. But when I say which of the following is going to strengthen the author's argument, strengthen का मतलब होता है कोई ऑलरेडी चीज है और मेरे को उसको पुश करना है, दैट वुड बी नोन एज स्ट्रेंथन। ठीक है। अच्छा, आई टेल यू हाउ इट इज डन एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से रामू, आई टेक वेरी सिंपल नेम्स एनीवे। रामू रीच द स्कूल लेट। ठीक है, तो इट इज देयर इन द सेंटेंस, रामू रीच द स्कूल लेट। अच्छा, अब इसके केस में अब मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे सकती हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स दिस आर्ग्यूमेंट। ठीक है, स्ट्रेंथन में मैंने बोल दिया रामू केम बाय अ सुपर उबर, सुपर स्पीडी उबर। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग उबर उबर, ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल। बाय सुपर स्पीडी उबर, रामू केम लेफ्ट हिज होम ऑन टाइम। ठीक है, लेफ्ट हिज होम ऑन टाइम, या फिर he came by a super fast hyperloop। ठीक है, या फिर he came via a metro। Which of the following strengthens this particular argument? मैंने क्वेश्चन बना दिया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको तो पैसेजेस से मिलेंगे बट आई थिंक आपको थोड़ा सा चीज मिलेगा इसमें से। तो टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथनिंग, राइट? तो मैं बोलूँ रामू रीच द स्कूल लेट। अच्छा, मैं इसको स्ट्रेंथन करना है, मतलब मेरे को दिखाना है कि यार रामू स्कूल लेट पहुंचा। ठीक है, मैं इसको कैसे सपोर्ट करूं कि बंदे को सामने वाले को विश्वास हो जाए कि यार वो लेट स्कूल पहुंचा है। ठीक है, बाय अ सुपर स्पीडी मेट्रो, सुपर स्पीडी उबर। ठीक है, एक ही ऑप्शन हो सकता है। ही लेफ्ट हिज होम ऑन टाइम, सुपर फास्ट हाइपर लूप, या फिर मेट्रो। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को स्ट्रेंथन करना है, क्या मेरे को मेट्रो की स्पीड पता है? कोई ऐसी मेट्रो है वो धीरे जाती है, वो एडवांस कैसी है, वो कितनी नई है, क्या वो नेसेंट स्टेज में, क्या वो बहुत एडवांस है, क्या वो जाती है? दिस वुड बी वेरी कांट्स ऑप्शन, यू नीड टू एलिमिनेट दिस ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेट्रो की, ठीक है, यू जस्ट एलिमिनेट दिस ऑप्शन। अब तीन ऑप्शन आते हैं आपके पास। सुपर स्पीडी उबर, लेफ्ट हिज होम ऑन टाइम, एंड सुपर फास्ट हाइपरलूप। लेफ्ट हिज होम ऑन टाइम, मान लो स्कूल उसको पहुंच रहा था 10 बजे, बट वो कन्वेंशनली 9 बजे घर से निकला, जो वो हमेशा निकलता है क्योंकि उसे 1 घंटा लगता है। बट हो सकता है बीच में ट्रैफिक जैम हो जाए, हो सकता है बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाए रोड में, हो सकता है रोड ब्लॉक हो जाए। उस केस में हो सकता है कि यार माना कि वो निकला 9 बजे, बट हो सकता है स्कूल पहुंचे वो 10:30 बजे क्योंकि इतना जैम हो गया। इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो बिकॉज ये ठीक से स्ट्रेंथन नहीं कर रहा ऑथर के आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दो ऑप्शंस में हटके, सुपर स्पीडी उबर एंड सुपर फास्ट हाइपरलूप। उबर कार लिख दो उधर। ठीक है। ठीक है, मेरे को चूज करना है सुपर स्पीडी उबर का, ठीक है, कार जो बहुत स्पीड से जा रही है, या फिर हाइपर लूप। हाइपर लूप होता है, इट्स बहुत बनने वाला है मुंबई एंड पुणे के बीच में, जो डिस्टेंस एटलीस्ट 25 मिनट्स कर देगा 3 आवर्स से। ऊपर बनता है हवा में एंड वो सीधा जाता है डायरेक्टली डायरेक्शन पर, दैट इज हाइपर लूप। ठीक है, यार कार में तो रोड पर भी ट्रैफिक हो सकता है, तो मैं मतलब हटा दूं उस ऑप्शन को। हाँ बट यार हाइपर लूप तो हो ही सकता है, तो सुपर स्पीडी हाइपरलूप। इसका मतलब अगर मैं बोलूं, द ऑप्शन विच बेस्ट स्ट्रेंथन्स दिस पर्टिकुलर सेंटेंस दैट इज रामू रीच द स्कूल लेट,
ऑप्शन सी इज गोना डू दिस इन अ बेटर, कोई नहीं रहा हाईलाइट एनीवे, let me erase this. But yeah, I think you have got the hack. So option C is going to be the correct answer. Super fast hyperloop. ठीक है, ठीक है, तो इस केस में आपको पता चल जाएगा कि यार क्या क्या होता है इस केस में, ठीक है। आई थिंक पता चल गया होगा। अच्छा, ये वीकनिंग वाली बात होती है आपकी। तो वीकनिंग वाली बात होती है तो उसमें क्या चूज करते हैं? तो वीकनिंग में एटलीस्ट आई वुड से मैं क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे करती कि अगर मैं इस बात को वीकन करूं, जैसे कि मान लो उसको सेंटेंस को वीकन करना होता कि रामू रीच द स्कूल लेट, ठीक है। अगर मेरे को दिखाना है कि यार वो स्कूल लेट नहीं पहुंचा, उस केस में मान लो अगर मैं कुछ सिचुएशन ऐसे बना रही हूँ कि रामू वेंट टू द क्लास वेयर द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट। अब रामू ने बोला, अब इस चीज पर्टिकुलर कि रामू वॉज लेट, ठीक है। मेरे को ही रीच द स्कूल लेट, इसको वीकेंड करना है। अगर मैं, क्योंकि मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ व्हाई आर यू लेट इन स्कूल, ठीक है। अगर मैं इसको वीकन कर दूं तो वीकन में ये ऑप्शन हो सकता है कि हाँ नीचे प्रिंसिपल ने रोक लिया था फोयर में, स्कूल के फोयर में कि अब इसलिए मैं लेट हो गया था, प्रिंसिपल को मेरे से कोई काम था, क्योंकि किसी और टीचर ने रोक लिया था, ठीक है। तो उस केस में तो उस पर्टिकुलर टीचर का आर्ग्यूमेंट वीकन हो गया ना कि वाई रामू वॉज लेट। तो ऐसे वीकनिंग वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं पर्टिकुलर सेट पीडीएफ वगैरह लाऊंगी, वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपको उससे काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा। बट अभी हम इस क्वेश्चन पर आते हैं जो हम कर रहे थे। सीओडी एलिमिनेट हो गए थे। Which of the following strengthens the author's idea that the words being like glowworms momentarily dispelling the surrounding darkness? ठीक है, तो सराउंडिंग डार्कनेस को वो पर्टिकुलरली आपका हटा रहे हैं एंड लाइफ सेविंग चीजें ला रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन क्या करेगा? यूजुअली जब आप स्ट्रेंथन के बारे में बात करते हो, यूजुअली ये जो चीजें होती है ना, स्ट्रेंथन, वीकन, अजम्पशन, ये पैसेज में ना लिखी हो, बाहर से ला रहे हो ना, इट मेक सेंस, इट मेक्स मोर सेंस अगर आप थोड़ा बाहर से इसको ला रहे हो। इट illuminates the minds of the reader, ठीक है, पैसेज में लिखा हुआ एक्सप्लिसिटली। बट इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, ठीक है। जो हमने इतनी सारी चीजें बोली कि आपका कि वर्ड एक इमोशन है, पूरा वर्ल्ड वर्ड पर बसा हुआ है, अबोर्ड ऑफ पीस है, अबोर्ड ऑफ फेथ, सॉरी। तो उससे तो आपको चीजों का पता चल रहा है ना कि यार आप कहीं ना कहीं रियलिटी को रेफर कर रहे हो, तो उस केस में आप इसको स्ट्रेंथन कर रहे हो। अग्रीड ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, अग्रीड ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको हो जाएगा। और एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं फंसाने वाले, जिसमें आपका लग काम करना जरूरी है। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप कर सकते हो। बंदा नॉर्मली देखा जाए तो बंदा इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर पर ही टिक करेगा। उसका जो करेक्ट आंसर था वो अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ही था, और ये है फंसने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर मेरे को, और जो क्वेश्चन स्टेम पर ज्यादा फोकस करना, व्हाट इज क्वेश्चन स्टेम? क्वेश्चन स्टेम इज व्हाट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि मेरे में क्वेश्चन स्टेम में इतना पूछा गया है कि which of the following strengthens the author's idea of words being like glowworms momentarily dispelling the surrounding darkness? तो मेरे को इसी पार्ट को स्ट्रेंथन करना है कि जो वर्ड है दे आर ग्लो वर्म्स बिकॉज दे हेल्प इन डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको स्ट्रेंथन करना है इसी पर्टिकुलर पार्ट को, तो मैं दूसरे फेज पर तो नहीं बोल सकती ना कि यार वो इल्यूमिनेट करता है माइंड ऑफ द रीडर, इल्यूमिनेट करता है, मेरे को समझाना पड़ेगा कि यार इसी बात को स्ट्रेंथन करना है कि वो डार्कनेस को हटाता है। तो इन दैट केस इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इज गोना मेक मोर सेंस। अदरवाइज तो illuminate the mind of the reader would be the other part of it, but we need to strengthen what is there in the question stem. Understanding the question stem is very very important, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पर बोला जा रहा है, अम, मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला इसका, बट एनीवे उसी क्वेश्चन जैसे वहां पर एंगेजमेंट विथ वर्ड इज मोस्ट कैप्टिवेटिंग एंड enchanting sometimes daunting what can be drawn from the statement, ठीक है। अब हाँ, अब देखो what conclusions can be drawn। बच्चे क्या करते हैं जब बच्चे नए नए होते हैं या फिर स्टिल, बच्चे गलती कर देते हैं कि वो पूरे पैसेज का कंक्लूजन निकाल देते हैं, ठीक है। पूरे पैसेज का कंक्लूजन बता दिया कि वर्ड तो जिंदगी है, ठीक है, और कुछ ऐसा ऑप्शंस ढूंढने की तलाश में पहुंच जाते हैं।
इधर। और ऑप्शन आ भी जाता है ऐसा कि मान लो कुछ वर्ड वर्ल्ड करके पूरा रिलेशनशिप दिया होता है, बच्चे उस पर टिक कर देते हैं, कहकर ये पूरा पैसेज का कंक्लूजन है। बट अगेन क्वेश्चन स्टेम बहुत मैटर करता है क्लैट में। क्वेश्चन स्टेम आपको देखना पड़ेगा कि आपको ये दो लाइनें पूछी हैं, तो ये इन दो लाइनों के बारे में ही आपको बताना है, इन दो लाइनों से बाहर नहीं जाना। मेक सेंस? प्रजम्पशन, इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, तो ऑप्शंस बाहर से आ सकते हैं, रियलिटी वाला जैसे क्वेश्चन देखा फ्रॉम द पैसेज। एंड there is no wrong in picking up any option which is from outside until unless that is completely out of scope. ठीक है? This is escaping the reality. There's a difference between understanding the reality and escaping the reality. ठीक है? बाकी आप कर लोगे, ऐसे ही क्वेश्चंस है, यू कैन डू दिस। ठीक है? अच्छा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर आते हैं। अच्छा, ये आप बाकी का सीआर का इधर भी देख सकते हो। सीआर वो सिंपल सीआर इजी आता है। सीआर मॉक्स में हो सकता है बहुत खराब दे दे, तो परेशान होने की बात नहीं कि मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, सीआर में 10 नंबर आते हैं, ठीक है, वो भी बच्चे क्लैट में टॉप करते हैं। हाँ, प्रीसिडेंट है, मैं बता रही हूँ, आई हैव सीन पीपल। ठीक है, आई टेल यू अदर थिंग्स आल्सो रिलेटेड टू क्लैट वेरी सून, रिगार्डिंग माय क्लैट इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, आई टेल यू, ठीक है, इन द अपकमिंग सेशन। लॉजिकल रीजनिंग में यू हैव सीन दिस पैसेज, हो सकता है बड़ा हो, बट क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन दिख रहा है आपको, ऑथर मोस्ट लाइकली एग्री विद, मस्ट नेसेसरीली बी ट्रू, मोस्ट लाइकली एग्री, ये आगे वीकन वाला क्वेश्चन, ऐसे ही आपका आता है। तो कुछ कह नहीं देगा रिजल्ट इन वीकनिंग, तो होती है चीजें, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग की जगह वो सपोर्ट भी दे सकते हैं, है ना, वो वर्ड्स को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, वीकन की जगह वो कॉन्ट्रडिक्ट भी दे सकते हैं। आते हैं मैथ्स पे। ठीक है, अब देखो, ये आपका मैथ्स होता है, क्वांटिटेटिव बोलते हैं, क्यूटी बोल लो, 12 मार्क्स का होता है, दो डीआई आते हैं, ये इसको पूरी बोलते हैं डीआई। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको सेट भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, पहली डीआई, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं इधर से। दूसरी डीआई, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। ठीक है, इन द सेम वे ये 15 मार्क्स का होता था मैथ्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब 150 मार्क्स का पेपर होता था। बट एनीवे ये आपकी पूरी डीआई है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरी ये एक ही डीआई है। पहले डीआई में काफी, मैं बताऊं तो घबराने की बात नहीं है, अगर आप 2020 से अटेम्प्ट कर रहे हो तो देखोगे मैथ्स के क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली भी गलत आए हैं। 2024 का स्टिल आई वुड से मैथ्स वाज इजी, मैथ्स वाज at least they should give something which makes sense. 2024 is something which made sense. 2020 was something which made sense. 2022 सॉरी, विच मेड सेंस। बाकी थोड़ा सा मैथ्स क्वेश्चन भी गलत है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये मेरे आंसर मैच क्यों है, मैथ्स के क्वेश्चन कुछ गलत है, कुछ ने उन्होंने आंसर के लिए विड्रॉन भी लिखा है कुछ क्वेश्चन पर, अगर देखोगे तो वो उस पर पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन बाद में गलत, पहले गलत था पेपर में, देन बाद में विड्रॉ कर लिया। ये दूसरी डीआई है, ये पूरी बस डीआई है। ठीक है, यहाँ सबको डेटा निकालना होता है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, ये रहा। अच्छा, रफ वर्क के लिए पेपर पे हमेशा दिया होता है क्वेश्चन पेपर पे, इधर आपको जो करना है आप कर लो। अच्छा, आप इसको कैसे करते हैं देखो, आप अपने टॉपिक बेसिकली आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज। ये जो 3 टॉपिक हैं क्यूटी के, इनको करके ही जाना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इनको करना ही है, इनको बहुत अच्छे से करना है, इनकी कितनी जितनी भी डीआई कर सको उतनी कर लेना। ये पर्टिकुलर टॉपिक ये मैं उठाऊंगी टॉपिक्स, ठीक है, पहले इन तीनों को करना। जब ये तीनों हो जाए फिर जाना आप लोग सी एस आई पे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो कैलकुलेशन को छोटा कर देती है। लोग यूजुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में घबरा जाते हैं, बट बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, इसमें एक इंस्टॉलमेंट निकालने वाला भी क्वेश्चन होता है, कभी पूछते हैं क्लैट, वैसे आज तक पूछे नहीं इंस्टॉलमेंट निकालने वाला, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी उसको भी, इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है। ठीक है, किसी ने ये इन्वेस्ट करा है, वो इन्वेस्ट करा, वो बहुत लेकिन हायर लेवल वो कैट साइड पर आ जाता है, बट हमें सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, एक आ जाता है प्रोबेबिलिटी का, ये डीआई भी प्रोबेबिलिटी पर दी थी उन्होंने, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। या प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ देम। 1 डीआई वो डाइस कॉइन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के पर आए थे। ठीक है, सीआई ऐसा है। अच्छा हाँ, टाइम एंड वर्क, इस पर आ जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा, डिस्टेंस स्पीड, दो गाड़ियां एक साथ चल रही हैं पैरेलली,
दो ट्रेन चल रही हैं, वो कितने बजे मीट करेंगी, ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन का प्रोमिनेंट आता है। टाइम एंड वर्क में 6 बंदे काम को 24 दिनों में कर देते हैं, 5 बंदे काम को 13 दिनों में कर देते हैं। ये सब लोग काम इस पर्टिकुलर काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क में, ठीक है। CISI में नॉर्मल आपका नाम दे देंगे, सीतू मीतू मोनू, एंड देन वो क्वेश्चंस बना देंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पर भी आपके बना देंगे। अदरवाइज इसके अलावा तो आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन 3 टॉपिक करने, इनफैक्ट आई वुड से सब टॉपिक करके जाना है। अच्छा, वन मोर टॉपिक इज ऑल्सो देयर, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसको भी करके जाना है, ठीक है। अदरवाइज आई फील एनालिटिकल रीजनिंग के अलग से लूंगी इलिट का सेशन, जहां पर मैं उसके टॉपिक्स आपको डिस्कस करूंगी। बट आई वुड से ठीक है, वन टॉपिक इज ऑल्सो permutation and combination. This particular topic is there in class 11th मैथ्स, ठीक है। बट मैं यही बोलूंगी, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे कैसे करेंगे इसको, फिर भी पढ़ाया जाता है, आई टीच दिस इज वेल, दिस इज नॉट कम येट, दिस मे कम, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिंपल, इसका बहुत बेसिक आता है, इसका 11th मैथ्स जैसा नहीं आता, वो तो डिफिकल्ट है ही। बट PNC परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसका अगर आ जाए तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल आएगा, तो वो डिफिकल्ट रॉकेट साइंस नहीं आएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, सिंपली 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। आपका रफ वर्क हमेशा दिया होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। Automobiles are the most preferred mode of transport because they allow us to cover large distance quickly. Resultantly, vehicles have been developed that run on diesel, petrol, and even electricity, which are remarkable innovation. Time waste करने की आधी सारी चीजें दी हुई हैं। During the survey about the percentage-wise distribution of cars in 4 different states, information regarding the ratio of diesel engine, petrol engine, electric cars was selected. The total number of cars was 8,000. Out of which state 1 had 15% of the total cars in the ratio. State 2, state 1, state 2, and state 3, and state 4. Answer the following. ऐसी कैसी आपकी चीजें होंगी 45। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं इसको बनाने की ट्राई करती हूँ आपके साथ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पर टेबल बनेंगे, ठीक है। आ, तो टेबल बनाने से घबराना मत, जैसे हो गई मान लो ये डीजल, ये हो गई पेट्रोल, ये हो गई इलेक्ट्रिक, ये हो गई स्टेट 1, ये हो गई स्टेट 2, ये हो गई स्टेट 3, ये हो गई स्टेट 4, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लो 8,000 है टोटल कार्स, टोटल लिख दिया 8K, जो लिखा ही हुआ ऑलरेडी। स्टेट 1 इज 15% ऑफ द टोटल कार्स, इसका 15% कितना होगा, निकाल लो। आई वुड से इसका 15% होगा 1200, या 1200 15% होगा। इसमें क्या है स्टेट 1 में, इसका 3:4:1, तो 3x, मतलब जब हम छोटे थे ऐसे लिखते थे 4x एंड देन x, डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक। मतलब अगर 3+4 7 है, 7+1 8 है, तो इसका मतलब 3/8 इंटू 1200, 1.2K का मतलब है 1200, ठीक है। इसको थोड़ा काटा पीटा तो वील गेट 450, तो 450 डीजल का हो गया इधर। सेम वे वी गोना गेट 600 फॉर पेट्रोल, एंड वील गेट द रेस्ट, रेस्ट कितना बना, 50 बना, 150, 150 करेक्ट, 150 बना फॉर इलेक्ट्रिक। तो उसको ऐसे ऐसे करके ही करना है, ऐसे करके पूरा टेबल आपका हो जाएगा। एंड देन आपसे पूछा गया है कि चलो मैं स्टेट 1 को क्वेश्चन ले लेती हूँ। चलो चलो मैंने स्टेट 4 ले लिया। 45% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक कार्स आर एयर कंडीशनर एंड द रिमेनिंग आर नॉन एयर कंडीशनर। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एयर कंडीशनर? 45% एयर कंडीशनर है,
तो बची हुई नॉन एयर कंडीशनड कितनी होंगी, 55% होंगी, ये तो स्टैब्लिश्ड है। तो मान लो, अगर मान लो स्टेट 4 की टोटल इलेक्ट्रिक 150 है, 150 का 55% कितना होगा, जो भी होगा, मान लो 320 होता है, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, 380 होता है, 380 पर टिक कर देना, ऐसे ऐसे इसको करना है। एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार्स इन ऑल द स्टेट्स, पहले आप डीजल सारी निकालोगे चारों स्टेट्स की, उनको एड अप कर दोगे, उनको 4 से डिवाइड कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ, आई वुड से सम ऑफ ऑल द थिंग्स अपॉन द नंबर ऑफ थिंग्स वुड गिव यू द एवरेज। ठीक है, पढ़ेंगे एवरेज मीन एक ही बात होती है। अच्छा मोड, अच्छा वन मोर टॉपिक, मोड, मीडियन, मीन, इसको भी आपको थोड़ा सा अगर पता हो सो बहुत अच्छा हो जाएगा। मोड, मीडियन, मीन, आता नहीं है ये, आ जाए पता नहीं, बार ग्राफ बनाकर, पहले पहले क्लैट्स में ना, क्लैट के पेपर में बार ग्राफ वगैरह भी उन्होंने पूछे हैं, बार ग्राफ से कुछ डिराइव करना, पिक्टोग्राफ से कुछ डिराइव करना, तो आ सकता है कुछ, इसका इतना नहीं है बार ग्राफ देखना या नहीं देखना, मैं जब कराऊंगी ना आपको फाइनली, आपको बहुत इजी लगेगा, मैं आपको बता रही हूँ, अभी लग रहा है कि यार इतनी बड़ी सी चीज है, कैसे को हो जाएगा। मैथ्स एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्या होता है क्लैट पेपर में, अगर किसी के वो होता है, मान लो टाई होता है मार्क्स में, तो आपकी वो लीगल रीजनिंग को चेक करते हैं। ठीक है, और लीगल रीजनिंग के मार्क्स कैसे हैं, अगर आपके दोनों के मार्क्स मान लो 92 आते हैं, तो आपकी लीगल किसको रैंक कैसे होती है, तो आपकी लीगल के मार्क्स देखते हैं, किसी के लीगल के मार्क्स मान लो 30.75 आए हैं, और किसी के लीगल के मार्क्स में मान लो 25 आए हैं, 30.75 को ऊपर रखा जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों के 25, दोनों के 25 आए हैं, दोनों के मार्क्स इक्वल हैं, तो देखोगे दोनों की एज कितनी है, जो बड़ा वाला होगा उसकी रैंक ऊपर रखी जाएगी एज कम्पेयर टू छोटा वाला होगा। फ्लैट में हर क्वेश्चन को करेक्ट करने पे आपको 1 मार्क मिलता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन को गलत करने पर आपका -1 पॉइंट 0.25 डिडक्ट होता है, तो उस केस में होता है। हालांकि आपका एलिट में भी सेम चीज चलती है, एलिट में भी पहले 150 मार्क्स का 90 मिनट्स देते थे, बट अब वो 120 मिनट्स ही देते हैं, 120 मार्क्स का पेपर होता है। और नहीं, 150 मार्क्स से होता है, 120 मिनट्स देते हैं, पहले 90 मिनट्स देते हैं, बट अब 120 देते हैं। ठीक है, और इसमें भी ये सेम चीज चलती है, 1 मार्क ऐड होता है एंड 0.25 हटता है। स्लैट में यूजुअली क्या होता है, अगर आप SLSP टारगेट कर रहे हो, बेस्ट लॉ स्कूल पुणे, तो स्लैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ। ठीक है, थोड़ा बेनिफिशियल होता है बंदों के लिए। So I hope that this particular session made sense to you guys. This was the second part of this. I think I have covered. I have a few notes also with myself that I had made for you guys. For these things, for the CLAT paper and all. CR में again मैंने आपको बताया, काफी सारी चीजें ना न्यूज़पेपर ओरिएंटेड आती हैं, कोई लंदन न्यूज़पेपर से आपकी उठा ली, मेजरली ना मैंने वो बताया ना एडिटोरियल वगैरह होते हैं, तो एडिटोरियल वगैरह थोड़ा पढ़ते रहा करो, एडिटोरियल वगैरह से चीजें आ जाती हैं। ठीक है, किसी एडिटोरियल को एक ऐसा एक्सट्रैक्ट आ गया जो किसी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी ने लिखा था अपनी बुक में, आ जाता है एडिटोरियल वगैरह से। ठीक है, आरसी में लिटरली थोड़ा लिटरली ज्यादा बेस्ड होता है, लिटरेचर वगैरह से ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर वो नैरेटिव चीजें भी पूछ ले, मतलब स्टोरी नरेट हो रही है या फिर न्यूज़पेपर से पूछ ले, तो कोई बात नहीं होगी, मोर और लेस सेम होता है। क्रिटिकल में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है, आरसी में कुछ स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग नहीं पूछेंगे, बट कब एक बार मतलब कुछ बार उन्होंने पूछा भी है, स्ट्रेंथनिंग रीजनिंग, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग वाले कर लोगे अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस हो तो। I hope that you have liked this particular sessions and I enjoy taking this. Just practice it. अभी क्या करो, पुराने पेपर्स को उठाओ, करना स्टार्ट करो, डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम करो, इंस्टाग्राम पे द BHLO एंट्रेंस एग्जाम टाइप करो, यू विल गेट द थिंग with my photo as well. So you can put DMs. Apart from that, you can also comment. जो जो चीजों में आपको डाउट लग रहा है, I'll surely pick up the topics for you guys. And thank you so much for watching this particular video. Do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And also hit the bell icon so that you're the first one to get the notification, right? So thank you so much. Bye.